So today we are going to discuss all those things. What are the learning outcomes for today's lecture? To know basics about finite automata, to understand the characteristics of an automaton, to define finite automata, to be able to describe graphical and tabular representation of finite automata, to understand the block diagram of finite automata. Okay, so first thing, define and describe the characteristics of an automaton. So after going through the basic introduction, you must have gone through the block diagram of general automaton and discrete automaton. So what do you think? What are the basic characteristics that you have gone through? Sir, input, Input, output, states, state relation, states, and state relation. and output relation. Okay. Hmm? Okay, fine. Just recall this diagram. You must have gone through this kind of thing. Finite control, or we can say automata here. No, no. Suppose n number of states are there. At this place, we are talking about input. Fine. These are nothing but states. So as she described about the basic characteristics, people are still joining. So basic characteristic we talk about. So input, then output, state, state relation, or output relation. Fine. So we if we talk about this thing, input, the thing that we are going to provide to this automaton. Okay. And if we talk about a particular thing that it must be a member of input alphabet denoted by sigma. Okay. So at each instant of time, t1, t2 till tn, we are talking about some input. Fine. And similarly, at each instant of time, we are going to produce some output, and it is going to belong to output alphabet. Fine. And alphabet is what? Finite non-empty set of symbols. For input, it is called as input alphabet, and for output, it is called as output alphabet. Fine. Now, we are talking of finite automata. So the number of states is finite, and what it is used for? To remember a particular portion of history of the system. Fine. Now, if we are having input, output, and state, what is the function of this thing? State relation. Yes, anyone? Sir, we can determine the next state of an automaton at any instant of time from We that. can determine
the next state. So how this is going to be determined? Sir, with the help of present state and present input. Present state and present input. Okay, fine. Apart from you, someone else? Avinash, Yes, sir. why state relation or state transition is required? Sir, no idea. Hmm? You know about the states? Just right now I have discussed why states are being used. अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले जस्ट डिस्कस किया। अभी एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग तो आपको और क्लियर हो जाएगा, बट फॉर द टाइम बीइंग whatever being is being discussed, just recall that thing. स्टेट हम लोगों ने क्यों बात की? टू रिमेम्बर अ पार्टिकुलर पोर्शन और पार्टिकुलर थिंग अबाउट द सिस्टम। सारी चीजें तो स्टार्ट नहीं की जा सकती उसको आप स्टेट में, फाइन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर जो रेलिवेंस है उस सिस्टम को कैप्चर कर रहे हैं। ओके, सो स्टेट इज रिक्वायर्ड after you are providing a certain input and the present state, the next state is decided, and for that state relation or state transition is required. Okay, is it clear now? Yes, sir. Okay, fine. So state relation is required to identify the next state, and for that you require what? Present state and the present input. Okay, in the same way, what is the output relation? To produce certain kind of output, you are going to use this output alphabet. Whatever is going to be produced will belong to this alphabet, output alphabet. Okay, so it can be dependent upon the state itself or the input and the state. So the output may be dependent on the state only, or the present state and the combination of present state and present input. So we are going to deal when we talk about milling machine and Moore machine. Fine. So basic things that is required to describe an automaton is what? The finite control, that is states, input, output, state relation or state transition, and output relation. Now these terms are clear. Now the question arises, what do you mean by an automaton? ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यू में भी और इन जनरल क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज एन ऑटोमेटन? ठीक है, तो इसका जो क्लू है वो है कि आप ऑटोमेटिक प्रिंटिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें देखते हैं ना। जब वर्ड कीवर्ड ऑटोमेटिक लग जाता है किसी मशीन से पहले तो उसका क्या अर्थ होता है, क्या इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं? एनीवन? Sir, it can perform its task without the help of humans. So human intervention is not required or minimal human interaction is required when we talk about automatic things. Okay, so basic Okay, thing sir. is what? A system. ठीक है, सिस्टम किस लिए? तो जहां एनर्जी है, मटेरियल है, या फिर जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए, फाइन। बट वहां पर ह्यूमन इंटरेक्शन क्या है, एकदम मिनिमम हो, या फिर वो विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन की बात करते हैं, फाइन।
So we can define an automaton as a system where material, energy, or information are transmitted or transformed for performing some kind of operation without human interaction. ये चीज क्लियर है? Yes, sir. फाइन. सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं कि सर व्हाट. हाँ बोलिए. सर जो आप स्टेट बता रहे हैं वो हाँ कौन से स्टेट में, मतलब वो स्टेट का मतलब क्या है, क्या होगा सर? देखिए, अभी हम लोग उसको समझेंगे. स्टेट का अर्थ हुआ कि जैसे आपने वहां पर एग्जाम्पल लेक्चर देखा है जो मैंने आपको शेयर किया था. यस सर, पूरा कंप्लीट नहीं लेकिन हाफ देखे थे। ठीक है, तो उसमें ही आप ध्यान से समझिए. अभी हम लोग देखेंगे उसको फिर से. ये ट्रिवियल एग्जाम्पल है एक स्विच का. ओके. अब ध्यान से बताइए मुझे, स्विच जो है वो किसी भी अप्लायंसेस के साथ लगा रहता है. इलेक्ट्रिक स्विच की बात कर रहे हैं. फाइन. मशीन क्या हो सकता है, सपोज फैन की बात करते हैं या बल्ब की बात करते हैं, तो क्या हो सकता है, वो ऑफ हो सकता है या फिर ऑन हो सकता है ना. यस और नो. यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपको ये याद रखना है कि लास्ट स्टेट उसका क्या था, वो किस स्टेज में था, वो ऑफ स्टेट में था या फिर ऑन स्टेट में था. तो ये रेलिवेंट पोर्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम हो गया. सपोज वो ऑफ स्टेट में था. ओके. देन यू अप्लाइड अ पुश, आपने पुश किया उस स्विच पे, तो क्या हुआ, एक इनपुट लगाना और करेस्पॉन्डिंगली क्या चेंज होता है, जैसे ही आपने वहां पर इलेक्ट्रिसिटी दी तो वो मशीन क्या हो गया, ऑन स्टेट में आ गया ना. ट्रू और नॉट. ट्रू सर। और यस सिमिलरली सर। अगर वो ऑन स्टेट में है तो आपने फिर से वो पुश अप्लाई किया, तो फिर क्या है, अप्लायंसेज ऑफ हो जाते हैं ना. यस सर। तो ये जो हम यस लोगों ने सर। कैप्चर किया, इसी को स्टेट बोलते हैं. अब डिनोशन के लिए मैथमेटिकली हम क्यू नॉट, क्यू वन, इस तरह से इसको डिनोट कर देते हैं. ओके. तो बेसिकली क्या हुआ, ये आपका एक स्टेट हुआ ऑफ और दूसरा स्टेट क्या हो गया, ऑन. अब इसमें हम लोग ने डबल सर्कल यहाँ बना दिया है. मतलब क्या है, इसको हम लोग फाइनल इसलिए बता रहे हैं ताकि जो अप्लायंसेज है वो रनिंग मोड में रहता है, तो इसको हम लोग ने क्या किया, फाइनल मोड में बना दिया, और इसे क्या है, इनिशियल स्टेट को बनाया ऑफ में. तो अल्टीमेटली क्या है, इस सिस्टम को अगर कैप्चर करना है तो हाउ मेनी स्टेट्स आर रिक्वायर्ड, अगर स्विच की टू बात करें स्टेट तो टू, सर। टू। है ना. तो स्टेट्स का अर्थ क्या हुआ, ये चीज क्लियर हुआ. वी आर कैप्चरिंग द सिस्टम, और सिस्टम के जो रेलिवेंट चीजें हैं उसको कैप्चर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, स्टेट्स की बात की. ओके. ये चीज क्लियर है ना. यस सर। यस सर। गुड. नाउ 5 टपल रिप्रेजेंटेशन. सेट थ्योरी की बात कर रहे हैं कि जो भी अभी हम लोगों ने देखा, अगर फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करना हो, सपोज m इज डिनोटिंग दैट थिंग, तो इसको हम लोग किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके. तो ध्यान से देखिएगा, ये सब अभी हम लोग फिर से एक एक करके देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इसको ध्यान से देखिए. ओके. ये 5 टपल्स जो हैं वो क्या क्या है. क्यू, ये हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं. क्यू इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, स्टेट्स. सिग्मा, ये हम इनपुट की बात कर रहे हैं. ओके. इनपुट अल्फाबेट. डेल्टा, ये हम ट्रांजिशन फंक्शन की बात कर रहे हैं. ट्रांजिशन फंक्शन जो अभी हम लोग ने स्टेट की बात की थी, तो स्टेट जो नेक्स्ट स्टेट होने वाला है वो स्टेट किस पे डिपेंड करता है, जो आपका प्रेजेंट स्टेट हो और जो आपका प्रेजेंट
इनपुट। ओके, क्यू नॉट ये है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट कहने का अर्थ ये कि जो भी आपका सिस्टम है उसमें आपको प्रोसेसिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो ये आपका बताता है क्या, इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेट्स ये हुआ सबसेट ऑफ क्यू, जो कि क्या बताता है, एक्सेप्टिंग स्टेट्स क्या क्या है। फाइन, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। ओके, तो पहले ये 5 टपल्स आप मन में ध्यान कर लीजिए, क्या क्या चीजें हैं। अभी हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करें तो एकदम लोएस्ट लेवल पे हैं, रिमेम्बरिंग वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या है 5 टपल्स, एक बार फिर से आप लोग सभी मन में बोलिए, क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट एंड एफ। क्यू इज व्हाट, it is the finite non-empty set of states. Okay, next sigma, it is nothing but finite non-empty set of input alphabet. Delta is the transition function, और जब मैथमेटिकली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए ये क्या है, प्रेजेंट स्टेट है और प्रेजेंट इनपुट है। स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला सेट क्या है, क्यू। इनपुट को रिप्रेजेंट करने वाला सेट क्या है, सिग्मा। फंक्शन है, मैप कहाँ कर रहा है, नेक्स्ट स्टेट, तो क्यू क्रॉस सिग्मा मैपिंग इनटू क्यू। क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट एंड एफ इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स विच इज सबसेट ऑफ क्यू। ओके, सो अल्टीमेटली क्या है, क्यू की अगर बात करें तो क्यू जो, जैसे यहाँ अभी हम लोग सिस्टम जो देखे इसमें कौन से स्टेट हैं बताइए, जो अभी जस्ट हम लोग ने स्विच का एग्जांपल देखा, इसमें कौन से आपके स्टेट्स हुए, ऑन एंड और ऑफ। तो अगर यहाँ हम लोग क्यू की बात करें, ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 स्टेट से बनेगा। कौन कौन से, ऑन एंड ऑफ से। ओके, इनपुट अल्फाबेट की बात करें तो ये क्या है, केवल पुश सिंबल की बात है। इनिशियल स्टेट क्यू नॉट की अगर बात करें तो यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्यू नॉट बिलोंगिंग टू क्यू इज द इनिशियल स्टेट। ओके, और फाइनल स्टेट्स की जब भी बात करें तो फाइनल स्टेट्स इज व्हाट, सबसेट ऑफ क्यू। ये दोनों ध्यान से देखिएगा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनाइट ऑटोमेटा, बहुत सारे इनिशियल स्टेट हो सकते हैं क्या, नो सर, नहीं, क्योंकि नो हम सर, नो लोग सर। क्यू नॉट की बात कर रहे हैं। ओके, क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट बिलोंगिंग टू क्यू। ओके, यहां तक क्लियर है सबको। 5 टपल क्या क्या यस हो सर, गए, क्यू, यस सर, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट एंड एफ। ओके, डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन मैपिंग व्हाट, क्यू क्रॉस सिग्मा इनटू क्यू। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट लेगा, प्रेजेंट इनपुट लेगा और करेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट स्टेट क्या होगा ये बता देगा। यहां तक क्लियर है ना सबको। यू कैन राइट डाउन इन यस सर। चैट बॉक्स ऑल्सो इफ इट इज क्लियर, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। जल्दी से लिखिए, अगर डाउट है तो पूछिए। वेरी गुड, और ये मन में एकदम नहीं रखना है कि मैं बाद में इसको पढ़ के क्लियर कर लूंगा, ठीक है। जो चीजें हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, सो दैट जब हम लोग आगे की बात करें तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो ये चीज क्लियर है। एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकते हैं क्या, ये बताएंगे कौन, प्रियांशु। प्रियांशु आप बताइए। इनिशियल स्टेट तो अभी हम लोगों ने देखा कि वो केवल एक ही होगा। फाइन, अब क्वेश्चन ये है कि एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकते हैं क्या। सर
ये आपका ऑडिबल नहीं था, फिर से बोलिए। नो सर। नहीं, क्यों नहीं हो सकता है एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स, बताइए। कुछ रीजन लग रहा है यहाँ देखकर? रोशन आप बताएं। यस सर। क्या एक से ज्यादा हो सकता है या नहीं फाइनल स्टेट्स? हो सकता है, हो हो सकता सकता है। है। कैसे कैसे पता चल रहे हैं कि एक से ज्यादा हो सकता है? ये यस। नहीं पता सर। नहीं पता है तो वापस से आते हैं। फाइनल स्टेट्स को ध्यान से देखिएगा और आप ही को जवाब देना है। फाइनल स्टेट्स को हम लोग ये जो 5 टपल रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया? यस रोशन। एफ से सर। एफ से, वेरी गुड। और एफ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या बताई मैंने? फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, फाइनल स्टेट्स को तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? जस्ट सी दिस थिंग। ये क्या कह रहा है? एफ इज सबसेट ऑफ क्यू। एफ इज सबसेट ऑफ क्यू। ठीक है, तो एफ इज यस। सबसेट ऑफ क्यू, तो इसमें कहीं भी ये चीज कही गई कि केवल एक ही मेंबर हो सकते हैं इसमें? नहीं। तो अल्टीमेटली नो क्या सर। है, एक से ज्यादा भी फाइनल स्टेट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से, क्यू नॉट इज बिलोंगिंग टू क्यू। यहाँ एफ एक सेट है, फाइन, कलेक्शन ऑफ स्टेट्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्यू नॉट इज अ मेंबर ऑफ क्यू। मतलब क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट वन पार्टिकुलर स्टेट। ठीक है, ये एकदम ध्यान रखिएगा। सो इनिशियल स्टेट्स की जब बात करेंगे तो क्या होगा, किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा में ओनली वन स्टेट इज गोइंग टू बी द initial state, but there can be multiple final states, and that is going to be represented by this set that is called final state set. Okay, and it is nothing but subset of q. ये चीज क्लियर है अब? Now coming on to the graphical and tabular representation of a finite automata. ध्यान से अब इसको देखिएगा। Suppose we are representing this kind of thing, next state, इसको हम लोग यहाँ पर इनपुट कर दिया है, a is equal to 0, a is equal to 1। अगर a से इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, q0, q1, q2, यहाँ पर आपने रख दिया q0, q1, q1, q2, q2, q1। लास्ट क्लास जिन्होंने किया था इस तरह का कुछ डायग्राम हम लोगों ने बनाया था, यस सर। है ना? तो इसमें से आइडेंटिफाई करना हो, सपोज वी वांट टू आइडेंटिफाई इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट क्या होगा? क्यू क्यू नॉट। नॉट। क्यू नॉट। क्यू कैसे नॉट। पहचाने हम लोग? सर एरो है। एरो है। एंड एरो है सर। फाइनल स्टेट क्यू क्यू वन। वन। Q1। कैसे आइडेंटिफाई किया? इंसर्कल्ड है वो। वो सर्कल है सर। सर्कल के अंदर है, फाइन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो इनपुट है, इनपुट क्या दिख रहा है आपको? जीरो और क्यू 0 नॉट, है। क्यू वन। जस्ट यहाँ देखिए, तो इनपुट अल्फाबेट को हम लोग अभी जो 5 टपल रिप्रेजेंटेशन देखा था उसमें किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? सिग्मा से ना? ठीक है, तो इसके मेंबर्स क्या हो जाएंगे? 0 एंड 1। ट्रू और नॉट? यस सर। यस सर। फाइन।
अब स्टेट्स की बात करते हैं। यहाँ कौन कौन से स्टेट्स दिख रहे हैं? स्टेट है सर Q0 सर Q1 Q2 Q0, Q1 एंड Q2। तो अगर Q की बात करें, जो सेट ऑफ स्टेट्स की बात करता है, तो इसके यही मेंबर होंगे ना? क्या है? Q0, Q1 एंड Q2। अब सपोज यहां पर मैंने एक और सर्कल लगा दिया, ठीक है? तो अब बताइए फाइनल स्टेट्स कौन कौन से हैं? Q1 and Q2 Q1 एंड Q2। इनिशियल स्टेट तो Q0 ही है, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Q0 is the initial state। नाउ डेल्टा की बात कर लेते हैं। डेल्टा किसको मैप करता है बताइए? Q क्रॉस सिग्मा मैपिंग इनटू Q। अब ध्यान से देखिएगा, इसके जो दो आर्गुमेंट्स हैं वो क्या कहां से आने वाले हैं? स्टेट से और इनपुट सिंबल से, इनपुट अल्फाबेट से। और मैपिंग कहां होने वाली है? स्टेट से, ठीक है? तो सबसे पहले हम Q0 की बात करते हैं। ओके, इफ प्रेजेंट स्टेट इज Q0 and present input symbol is 0, then we are going to which state? Q0. Q0 Q0। तो ये हम लोगों ने ट्रांजिशन फंक्शन जब लिखा, तो डेल्टा ऑफ Q0 0 इज इक्वल टू व्हाट? Q0, ठीक है? साइमल्टेनियसली ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल्टा ऑफ Q0। अब नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या बचा? 1। अब ये कहां जा रहा है बताओ? Q1. Q1। तो ऐसे ही पॉपुलेट कर सकते हैं ना सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए। Yes sir सो डेल्टा Yes, sir. Q1 0, साथ साथ करते चलिए इसे। डेल्टा Q1 0 इज व्हाट? बताइए। Q1. Q1 Q1। डेल्टा Q1 1 Q2। डेल्टा Q2 0 Q2। वेरी गुड। एंड डेल्टा Q2 1 कहाँ जा रहे हैं? Q1। Q1 ठीक है। अब फाइनल स्टेट्स की अगर बात करें, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं फाइनल बताइए? Q1 और Q2 Q1 एंड Q2। और ये सबसेट है कि नहीं Q का? देखिए ध्यान से। सबसेट है फाइन। तो अब अगर 5 टपल रिप्रेजेंटेशन किया जाए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, Q सिग्मा डेल्टा Q0 एंड F। Q है क्या? सेट ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स। मेंबर्स क्या हो गए? Q0, Q1 और Q2। सिग्मा इज फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, दैट इज इनपुट अल्फाबेट। मेंबर्स क्या हो गए? 0 एंड 1। डेल्टा इज द ट्रांजिशन फंक्शन मैपिंग Q क्रॉस सिग्मा इनटू Q। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। Simultaneously Q0 is the initial state and F, that is Q1 and Q2 is the set of final states। ये चीज क्लियर है? Yes sir तो ये Yes, क्या sir. हुआ? ये आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसी को अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, इनिशियल स्टेट क्या है? Q0, Q1 एंड Q2। चूंकि ये फाइनल स्टेट्स हैं इसलिए क्या किया, यहाँ पर डबल सर्कल लगा दिया। अब देखिए Q0 0 पे कहाँ है? Q0 पे ही है, तो ये आर्क बनाया, इसके ऊपर इनपुट सिंबल रख दिया। Q0 1 पे कहाँ जा रहा है? Q1 पे, तो ये हमने कर दिया। Q1 0 पे अगेन Q1 पे ही रह रहा है। 1 पे कहाँ जा रहा है? Q2 पे जा रहा है। अगेन Q2 0 पे कहाँ है? Q2 पे है। और 1 पे कहाँ जा रहा है?
Q1 पे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। फाइन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी आप ये बना सकते हैं, आर्क के ऊपर आपको इनपुट दिखा, एरो जहां बता रहा है वो आपका स्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट क्या हुआ, क्यू नॉट, तो डेल्टा क्यू नॉट 0 इज इक्वल टू क्यू नॉट, डेल्टा क्यू नॉट 1 इज इक्वल टू Q1, डेल्टा Q1 0 इज इक्वल टू Q1, डेल्टा Q1 1 इज इक्वल टू Q2, डेल्टा Q2 0 इज इक्वल टू Q2, डेल्टा Q2 1 इज इक्वल टू Q1। ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके फाइन। सो चलिए एक टास्क आपको देते हैं, जल्दी से इसको बना लीजिए। Q0, Q1, Q2, suppose this is A, ये एरो यहाँ से मानिए। नेक्स्ट सपोज A, नेक्स्ट B, A, B, B। ओके, ये वहां भी लिखा जा सकता था, यहाँ भी अलग से ही एरो बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यू रिप्रेजेंट इट इन 5 टपल। ठीक है, जल्दी से इसको रिप्रेजेंट करिए। गुड। ओके फाइन, लेट अस से कर लिया, बहुत बढ़िया। अदरवाइज पहले आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बना लीजिए। प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, इनपुट सिंबल्स। यहाँ क्या क्या है इनपुट सिंबल्स? A and B। A and B। प्रेजेंट स्टेट Q0, Q1 एंड Q2। सर्कल किस स्टेट पे लगाएंगे? Q2. Q2। Q2, क्योंकि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डबल सर्कल Q2 पे है। Q0 A पे कहाँ जा रहा है? Q1। Q1. Q1। B पे भी अगर देखें तो कहाँ जा रहा है? Q1। Q1। Q1 Q1 A पे, Q0, और B पे Q2। Q2। Q2 A पे कहाँ है? Q2 पे रहा। और B पे Q1। Q1। तो ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। 5 टपल आपको मालूम है, Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 एंड F। Q कौन कौन से स्टेट्स हैं बताइए? Q0, Q1 and Q2। Q0, Q1 एंड Q2। इनपुट अल्फाबेट क्या है? A and B. A एंड B। डेल्टा की अगर बात करें तो डेल्टा Q0 A इज इक्वल टू व्हाट? Q1। डेल्टा Q0 B इज इक्वल टू व्हाट? Q1 A, डेल्टा Q1 B, डेल्टा Q2 A एंड डेल्टा Q2 B। क्या क्या एंट्री होगी डेल्टा Q1 A में? Q0। डेल्टा Q1 B, Q2. डेल्टा Q2 A Q2। and delta Q2 B. Q1। Very good. Q0 is the initial state. Fine. और यहाँ पर कौन सा है स्टेट फाइनल? Q2 है। Q। लेकिन रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट नोटेशन में कर रहे हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा,
Q naught belonging to Q is the initial state and set of final states is what? F containing only one member, that is Q2. तो 5 टपल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया ना, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन भी हो गया एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। तो अब आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और yes, sir. टेबुलर दिया हो तो ग्राफिकल भी कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. 5 टपल में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो अब मुझे प्रियांशु बताएं कि डेल्टा को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। डेल्टा क्लियर है ना प्रियांशु? Yes, sir. हाँ, तो बताइए मैथमेटिकली कैसे उसको डिफाइन कर रहे हैं। डेल्टा है क्या? Transition function. वेरी गुड। उसके एलिमेंट्स को देखिए, आर्गुमेंट्स को देखिए, क्या क्या आर्गुमेंट मिल रहा है। डेल्टा में आप इनपुट दे रहे हैं ना कुछ, Yes, sir. क्या क्या दिया? Q naught A. हाँ, तो मतलब Q नॉट क्या है? Q naught एक initial स्टेट state. है Yes, sir. और A क्या है? Input. इनपुट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली स्टेट और इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट क्या दिख रहा है आपको? Q1 state. तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली? Q Q cross sigma equal to ये मैपिंग equal to कहाँ कर Q. रहा है? Q फंक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इक्वल टू नहीं है, हम लोग मैपिंग दिखाते हैं। ये क्या है? फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आया? स्टेट से। सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आया? इनपुट से। मैप कहाँ हो रहा है? स्टेट में। तो डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन मैपिंग Q क्रॉस सिग्मा इनटू Q। ये चीज क्लियर है? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, कितने लोगों ने ये पढ़ा था? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। पढ़ा था तो यस करें। श्वेता, और कोई नहीं पढ़े थे? देखिए जो भी टास्क दिया जाता है उसको सीरियसली करें, ओके? This is what we call as input tape divided in square, each capable of holding one symbol। और ये सिंबल कहाँ से आएगा? जो अभी हम लोगों ने बात किया इनपुट अल्फाबेट से। नेक्स्ट, रीड करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। तो क्या है? एक आपके पास रीडिंग हेड है, ओके, एंड अल्टीमेटली the thing that we call finite control, okay? तो सपोज इस तरह की अगर हम बात करें, ये एंड मार्कर्स हैं, इनके बीच जो भी चीजें दी गई वो अगर सीक्वेंस को हम लोग देखें तो इनपुट स्ट्रिंग के तौर पे जानते हैं। We call this sequence as input string. Finite control can remain in one of the states that we represent in Q. The reading head can move left to right or right to left. ये मूवमेंट क्या हो सकता है? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। लेकिन इन जनरल हम लोग जो अभी डिस्कशन करेंगे उसमें मूवमेंट लेफ्ट टू राइट रहेगा। When we talk about two-way finite automata,
बोथ साइड मूवमेंट इज अलाउड। लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें मूवमेंट कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट किया फर्स्ट सिंबल से और राइट मोस्ट सिंबल तक जाएगा, तो मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट ये अलाउड है। ये क्या करेगा, एट अ टाइम वन सिंबल रीड कर सकता है, फाइन। नल मूव हो सकता है या फिर जो आपका डिफाइंड है उसमें क्या करेगा, ट्रांजिशन फंक्शन का यूज करके करेगा। ओके, जो अभी हम लोगों ने बात की। सो हु इज गोइंग टू डिफाइन नल मूव? क्या क्या चीजें आज डिस्कस हुई, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, सूरज बताएं। यस, आर यू देयर सूरज? यस सर, यस सर। हाँ बताइए, क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस की आज। सर पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोमेशन डिस्कस किए, फाइनाइट ऑटोमेशन। ऑटोमेशन नहीं है, हेलो सर। हाँ ऑटोमेट ऑटोमेशन नहीं है, ऑटोमेटा है। ओके, यस सर। हाँ ऑटोमेटन बोलते हैं, सिंगुलर ऑटोमेटा हो जाता है। ओके, वेरी गुड। फिर उसके बाद फिर सर मत पलटो, ठीक है, अपने मन से रिकॉल करने की बात करते हैं। ओके, जितना ध्यान आता है उतना ही हम लोग बात करें। फिर सर 5 टपल डिस्क्राइब किए हम लोग, वेरी गुड। जिसमें जिसमें क्यू, समेशन, क्यू नॉट, एफ और डेल्टा डिस्क्राइब किए। क्या क्या फिर है उसके ये बाद बता सकते हैं क्या? यस क्यू, कैपिटल क्यू है फाइनाइट सेट ऑफ नॉन एम्प्टी स्टेट। फिर समेशन है फाइनाइट इनपुट नॉन एम्प्टी अल्फाबेट। हम्म क्यू नॉट है इनिशियल स्टेट हम्म और एफ है फाइनल स्टेट हम्म और डेल ट्रांजिशन फंक्शन। वेरी गुड। उसके बाद फिर क्या हम लोगों ने डिस्कस किया? ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम सर। हाँ, और ये किसके लिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ या फिर टैबुलर रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? सर हम लोग जो इनपुट ले रहे थे और जो मतलब ये समेशन दिया हुआ था, पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? फाइनाइट ऑटोमेटा सर। वेरी गुड, ठीक है विवेक, अब आप बताएं। डेल्टा जो ट्रांजिशन फंक्शन है, विवेक आर यू देयर? यशस्वी Yes, sir. बताइए आप, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, किस तरह से मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट किया था? Sir, del Q into sigma. हाँ, मैपिंग कहाँ कर रहा था? Sir, mapping Q. क्यू क्रॉस सिग्मा मैपिंग इनटू क्यू। Q. ओके, वेरी गुड। Yes. वीरेंद्र आप बताइए, ब्लॉक डायग्राम में यस क्या सर। क्या चीजें हैं? क्या सर? ब्लॉक डायग्राम जो फाइनाइट ऑटोमेटा का है उसमें क्या क्या चीजें हैं? सर स्टेट, इनपुट, ध्यान ट्रांजिशन से, जो फंक्शन। लास्ट चीज अभी हम लोगों ने बात की, जो ब्लॉक सर डायग्राम इनपुट, अभी आपके सामने है। सर इनपुट टेप, हम्म फाइनाइट कंट्रोल जो कि लेफ्ट और राइट मूव करता है। फाइनाइट कंट्रोल मूव करता है, सो वो टू वे मूवमेंट होता है सर। तो वो किसकी मूवमेंट की बात हो रही है? फाइनाइट ऑटोमेटा सर। कोई इनको करेक्ट कर सकते हैं? विपुल? सर रीडिंग हेड मूव करेगा। रीडिंग हेड मूव करेगा, ओके वेरी गुड। सो मूवमेंट क्या है, टू वे हो सकता है ना, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, लेकिन हम लोग यहाँ रिस्ट्रिक्ट किस पे कर रहे हैं, किस साइड लेफ्ट की मूवमेंट? टू राइट। लेफ्ट टू राइट की। अगर दोनों साइड अलाउ करेंगे तो उसको किस तरह का ऑटोमेटा बोलेंगे? Two-way finite automata. ऑटोमेटा। टू वे फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइन, अटेंडेंस बना रहे हैं आप लोग? यस सर। वेरी गुड।
ये टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक भी आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए इसका। बेसिकली हम लोग फॉलो करेंगे KLP मिश्रा एंड उलमैन वाली बुक। इसके अलावा भी जहां जहां जो रेफरेंस लेंगे वो आपको बताते चलेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सर। फाइन, समझ में आया? यस सर। Yes, बहुत sir. टफ सब्जेक्ट नहीं ना है। नो सर। एकदम जिस तरह से हम लोग पहली क्लास में भी बताए थे कि जिस तरह से छोटे छोटे पजल सॉल्व करते हैं उसी तरह से ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बट यू हैव टू अटेंड द क्लास रेगुलरली एंड विथ फुल कंसंट्रेशन। ओके ओके सर। फाइन, ठीक है। जिन्होंने अटेंडेंस कर लिया दे कैन नाउ लीव द मीटिंग। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर।